ICSC Mathematics Class 10th Chapter 13 Exercise 13B. Question number 9. Draw an angle ABC equal to 65 degree. Construct a point which is at a distance of 3 cm from both the arms of the angle. देखिए एक ABC एंगल है जिसका मेजरमेंट है 65 डिग्री। हमारे को एक पॉइंट लेना है जो कि इक्वी डिस्टेंस पर होना चाहिए फ्रॉम BC एंड फ्रॉम AB. Distance is always taken as perpendicular distance. So that point lies on the angle bisector. Let BD be the bisector of the angle ABC. But this distance means perpendicular distance should be 3 cm. In order to find the particular point, that is E on BD, first of all, just take a point on either side of BC, a little bit away from it, so that this construction can be completed. From here you just draw a perpendicular. After 3 cm means from O you cut a 3 cm, that is OF. At the point F you again construct a 90 degree, means this will be the 90 degree, this will be also 90 degree. So this line will be parallel, means FE will be parallel line and E will cut or intersect the BD at E. From E, if you drop a perpendicular, that will be the 3 cm. Again, if you drop a perpendicular to AB, that will be also 3 cm. So here I have written steps of construction. The construct angle ABC 65 degree. Draw BD bisector of angle ABC. At O, construct 90 degree and cut OF is equal to 3 cm. At F, again construct an angle of 90 degree, that is OFE. From E, drop perpendicular to BC and BA, that is EM and EN. Hence, E is the required point. Now here it is completed. Now proceed to the question number 10. Draw a triangle ABC. Find the point P, which is equidistant from the 3 sides of the triangle. From P, draw perpendicular PL, PM, PN respectively to BC, CA and ABA. Can you prove that PL is equal to PM and PM is equal to PN? Now here देखिए आप एक ट्राइंगल दिया हुआ है ABC. हमारे को ऐसा पॉइंट लोकेट करना है जो कि साइड से इक्वल डिस्टेंस पर हो. मीन्स BC के परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर मेजर करें, वो इधर से भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेजर करें, इधर से भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेजर करें, सभी इक्वल होनी चाहिए. मीन्स साइड से इक्वी डिस्टेंस होना चाहिए, ना कि वर्टेक्स से. तो साइड से हमेशा जब भी डिस्टेंस लिया जाएगा दैट विल बी द परपेंडिकुलर डिस्टेंस. तो इसके लिए क्या करना है हमारे को, फर्स्ट ऑफ ऑल यू ड्रा द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल B एंड एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल C, which intersect each other at the point P. From P, you drop a perpendicular. From P, drop a perpendicular to BC, BA and AC or CA. The BC पर क्या है perpendicular PL, CA पर क्या है PM और BA और AB पर है PN. I hope that all of you will be knowing how to drop a perpendicular to the given line. उसके लिए क्या करना होता है देख लीजिए, मैं बताता हूँ. P को सेंटर लेकर के 2 आर्क काट करेंगे
और इन दो आर्क के मदद से इस आर्क को हम इंटरसेक्ट लेंगे, इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट लेंगे और यहाँ से हम P को ज्वाइन कर लेंगे। सिमिलरली इन दिस केस आल्सो हम P से कोई रिक्वायर्ड रेडियस लेंगे जो कि CA को 2 पॉइंट पर कट कर रहा हो। देखिए 2 पॉइंट पर कट कर रहा हो और यहाँ से हम मोर देन हाफ ऑफ इट और रेडियस लेकर के आर्क काटेंगे, आर्क खींचेंगे जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा और दैट इंटरसेक्टिंग पॉइंट और P को ज्वाइन कर दीजिए। सिमिलरली हियर आल्सो, so in this way you can find out the PL, PM, PN. See, from P drop a perpendicular to BC and BA, that is PL, PM in triangle PBN. In triangle PBN and triangle PBL, angle N is equal to L. क्यों N is equal to L? Because it is a perpendicular, so it is 90 degree. Angle PBN and PBL are equal because PB is the angle bisector. PB is the angle bisector of angle B, and PB is equal to PB. PB कॉमन है इन दोनों ट्राइंगल में, इन दोनों ट्राइंगल में PB कॉमन है। तो अब देखिए इधर ये एंगल मतलब 90 डिग्री और ये एंगल और ये साइड, उसी तरह से ये एंगल 90 डिग्री और ये एंगल B एंगल ये और ये साइड्स, मीन्स एंगल साइड थ्योरम। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द postulate or axiom, it is a theorem. So PN is equal to PL. Once you prove that these two triangles are similar, or sorry, congruent, PBN is congruent to PBL by angle side theorem. Now the PN will be equal to PL, that is corresponding part of the congruent triangle. Similarly, we can prove that PL by taking these two triangles, PL will be equal to PM. PL is equal to PM. So in this way we can prove that the PN is equal to PL, PL is equal to PM. और ये चीज़ हमारे को इन सर्किल ड्रा करने के लिए ज़रूरत पड़ता है। सेम फिनोमेना we have to do, same process we have to do while we are drawing the circle which has been inscribed by this triangle, in order to find the inner radius of the circle, inner circle. So these are the means PL, PN, PM are the radii of the in circle. In that case also it is required the same process is done. Now proceed to the question number 11. Which of the following statements are always true? Again I am stressing or emphasizing, which of the following statements are always true? Always word is there. Always true. Which are false? Which are always false? Which are always true? Now see the statement A part, that the perpendicular bisector of a line can be constructed so that it will pass through the given point. A perpendicular bisector of a line can be constructed. That is true. This much is correct. Means perpendicular bisector of the given line can be constructed so that it will pass through a given point. Now it is not necessary that perpendicular bisector will pass through the given point. It is not necessarily that the perpendicular bisector will pass to the given lines. Hence, therefore, it is false. Now, 11B part.
The perpendicular bisector which passes through a given external point does so only by accident. Now the perpendicular bisector which passes through a given point does so only by accident. अब देखिए यहाँ पर वर्ड समझिए, द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर विच पासेस थ्रू अ गिवन एक्सटर्नल पॉइंट, एक पॉइंट दिया हुआ है बाहर, लाइन सेगमेंट के बाहर दिया हुआ है, डज सो ओनली बाई एक्सीडेंट। अब बोला है कि हो सकता है कि वो पॉइंट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर हो बाई एक्सीडेंट, मीन्स हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया और वो पॉइंट गुजरते उसी बाइसेक्टर पर पड़ गया, दैट मे बी करेक्ट। देखिए ना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर विच पास थ्रू अ गिवन एक्सटर्नल पॉइंट, यहाँ तक क्लियर है कि गिवन एक्सटर्नल पॉइंट से पास होगा। डज सो, ऐसा होता है ओनली बाई एक्सीडेंट, बोला है कि हाँ हो सकता है ओनली बाई एक्सीडेंट मीन्स बाई लक, or it may be given that on that point will be on the perpendicular bisector. In that case, the external point will be on the given perpendicular bisector. Now proceed to the C part. An angle bisector cannot be made. Angle bisector cannot be made to pass through a fixed point other than the vertex of the angle इट बाइसेक्ट। अब जो किसी एंगल को बाइसेक्ट करता है लाइन, अब ये कोई ज़रूरी नहीं है कि दिए हुए पॉइंट से ही वो बाइसेक्टर जाएगा, एक्सेप्ट द वर्टेक्स, मीन्स जिस पॉइंट पर एंगल है उस एंगल से तो होकर जाए, उस पॉइंट से तो होकर जाएगा, लेकिन इसके अलावा कोई ज़रूरी नहीं है कि उस गिवन पॉइंट से। देखिए, एन एंगल बाइसेक्टर कैन नॉट बी मेड टू पास थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट अदर देन द वर्टेक्स ऑफ द एंगल इट बाइसेक्ट। जिस एंगल को बाइसेक्ट करता है उसके वर्टेक्स को छोड़ करके कोई ज़रूरी नहीं है कि दिए हुए पॉइंट से जाएगा, दैट इज ट्रू। अब देखिए इधर डी पार्ट, अ लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ अ गिवन लाइन एंड अ गिवन एक्सटर्नल पॉइंट इज नॉट नेसेसरली परपेंडिकुलर टू द लाइन। अब एक मिड पॉइंट दिया हुआ है और एक पॉइंट दिया हुआ बाहर, मतलब किसी लाइन सेगमेंट पर एक पॉइंट मिड पॉइंट दिया हुआ है और एक पॉइंट बाहर दिया हुआ है। एक पॉइंट कहाँ पर है? मिड पॉइंट है लाइन सेगमेंट, और एक पॉइंट आउटसाइड ऑफ द लाइन सेगमेंट है। उन दोनों को ज्वाइन किया जाए तो ये कोई ज़रूरी नहीं कि वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। नेसेसरली अ लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ अ गिवन लाइन एंड अ गिवन एक्सटर्नल पॉइंट इज नॉट नेसेसरली अ परपेंडिकुलर टू द लाइन। अब ये कोई ज़रूरी नहीं कि वो परपेंडिकुलर ही होगा। परपेंडिकुलर कब होगा? जब वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर मौजूद होगा, क्योंकि मिड पॉइंट से तो होकर जा रहा। अगर वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तभी वो पॉइंट, अगर पॉइंट उस पर है तभी जाकर मिलेगा। देन इट इज ऑल्सो, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, ट्रू। अ लाइन विच बाइसेक्ट एन एंगल, इस एंगल को बाइसेक्ट करने वाला, बाइसेक्टर मीन्स ऑफ ए ट्राइंगल, डज नॉट नेसेसरली बाइसेक्ट द अपोजिट साइड। जिस वर्टेक्स के एंगल को बाइसेक्टर है, ये कोई ज़रूरी नहीं कि उस वर्टेक्स के ठीक अपोजिट वाले साइड को भी बाइसेक्ट करेगा। एंगल बाइसेक्टर इज नॉट नेसेसरली दैट इट विल बाइसेक्ट द अपोजिट साइड्स ऑल्सो। एंगल बाइसेक्टर जो रहेगा ये कोई ज़रूरी नहीं है कि उसके ठीक अपोजिट जो साइड है उसको भी बाइसेक्ट करेगा। इट इज ऑल्सो ट्रू।
Now the F point, a line which is perpendicular bisector of the side of a scalene triangle will not necessarily pass through the vertex of the angle opposite to the sides bisected. अब देखिए, a line which is perpendicular bisector of a side of a scalene triangle. क्यों देखिए यहाँ पे स्केलिन ट्राइंगल दे दिया, अगर वो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, अगर वो इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा, देन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर विल पास थ्रू द वर्टेक्स. लेकिन इसने एक्सप्लेन कर दिया, पहले ही कंडीशन दे दिया स्केलिन ट्राइंगल है, तो स्केलिन ट्राइंगल में कोई जरूरी नहीं है कि वो दैट विल पास थ्रू दैट वर्टेक्स. A line which is perpendicular bisector of the side means एक साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दिया हुआ है, कौन से साइड होना चाहिए, स्केलिन का साइड होना चाहिए. विल नॉट नेसेसरली, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि पास थ्रू द वर्टेक्स, माने ठीक अपोजिट जो वर्टेक्स है उससे होकर जाएगी. अब द एंगल अपोजिट टू द साइड बाइसेक्टेड, जिस साइड का बाइसेक्टर खींचे हो, राइट बाइसेक्टर खींचे हो या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचे हो, उस साइड के ठीक अपोजिट वर्टेक्स को से होकर कोई ज़रूरी नहीं कि जाएगी, ये बोल रहा है. और ये हाँ ठीक है, ये ट्रू है स्टेटमेंट, बट मैं बतला रहा हूँ कि अगर वो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, देन दिस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर विल पास थ्रू द वर्टेक्स. लेकिन ये इक्विलेटरल ट्राइंगल नहीं है, स्केलिन ट्राइंगल है. नाउ कम टू द 12th पार्ट, सॉरी क्वेश्चन नंबर 12, ए पार्ट. Point X and Y are 20 meters apart. A tree is 10 meters from the X and 24 meters from Y. Find a point 18 meters from the tree and equidistant from X and Y. Make a sketch to the scale of 5 meter to a centimeter. अब स्केल दे दिया हुआ है यहाँ पर, स्केल इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 मीटर. सो जो एक्स वाई का बीच में जो डिस्टेंस दिया हुआ है एक्स वाई, उसका डिस्टेंस कितना दिया है 20 मीटर. 20 मीटर को हम स्केल में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा 4 सेंटीमीटर. और 10 मीटर है किसका, एक्स और टी का. देखिए ऊपर लिखा हुआ है एक्स टी, ये 10 मीटर है, इसको हम कन्वर्ट करेंगे स्केल में तो कितना आएगा पेपर पर 2 सेंटीमीटर. वाई टी टी फॉर टी, आई हैव टेकन टी इसलिए लिखा हूँ ट्री के लिए. So YT, that is 24 meters, and on paper it will be 4.8 centimeter. 4.8 centimeter. Or 18 meter, which can be represented with the help of a scale, that will be equal to 3.6 centimeter. अब चीज़ को समझिए, पहले तो हमने एक ट्रायंगल बना लिया, एक्स वाई कितना लिया हमने 4 सेंटीमीटर, और एक्स टी का एक्स को सेंटर लेकर के रेडियस कितना लेना है 2 सेंटीमीटर का रेडियस लेकर के एक आर्क खींचा. वाई को सेंटर लेकर के और 4.8 सेंटीमीटर रेडियस लेकर के हमने एक सेकंड आर्क खींचा जो आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं पॉइंट टी पर. हम एक्स टी को और टी वाई को मिला दिया. इस तरह से हमारा जो ट्रायंगल है एक्स वाई टी कंप्लीटेड. नाउ ड्रा द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एक्स वाई. अब एक्स वाई का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा कीजिए. मीन्स टेकिंग अ रेडियस मोर देन हाफ ऑफ द एक्स वाई, टेकिंग द रेडियस मोर देन हाफ ऑफ द एक्स वाई, ड्रा एन आर्क which intersect each other and join that intersecting point. Let AB is the line segment which is the right bisector of the
एक्स वाई का राइट बाइसेक्टर क्या है, ए बी जो है राइट बाइसेक्टर और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का ये। नाउ टी से हमने 18 सेंटीमीटर को देखिए, 18 मीटर को हम कैसे कन्वर्ट किया है, 3.6 सेंटीमीटर। तो हमने टी से 3.6 सेंटीमीटर रेडियस लिया है और एक सर्किल ड्रा किया है, टेकिंग द रेडियस इक्वल टू 3.6 सेंटीमीटर एंड सेंटर एज टी। देखिए यहाँ पर लिखा हूँ, T as a center and radius equal to 3.6 centimeter. Draw the circle which intersect AB at P and P dash. AB को दो पॉइंट पर कटता है, एक P और एक P dash. P and P dash is the required point as per the given condition. जो कंडीशन दिया हुआ है उस कंडीशन के अनुसार P and P dash हमने क्या किया है, T को सेंटर लिया है, रेडियस लिया है इक्वल टू 3.6 सेंटीमीटर का, एक सर्किल ड्रा किया है जो कि राइट बाइसेक्टर को और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को P और P डैश पर इंटरसेक्ट करता है। सो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड द A part of the question number 12. Now proceed to the B part of it. क्वेश्चन नंबर 12 बी पार्ट। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ कि लेट वाई टी बी 30 मीटर्स। वाई और टी की मीन्स वाई पॉइंट और ट्री से 30 मीटर की अगर डिस्टेंस है और एक्स वाई कितना है 20 मीटर ग्राउंड में दिया हुआ है, पेपर में कितना है 4 सेंटीमीटर, इसका पेपर में कितना होगा 6 सेंटीमीटर। अब एक्स टी 20 सेंटीमीटर है क्योंकि 2 सेंटीमीटर है बिकॉज 10 मीटर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 मीटर, सो 10 मीटर इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। तो देखिए इधर 4 + 2 कितना हुआ 6 और इधर भी 6। सो नाउ यू सी टी एक्स वाई आर कोलिनियर पॉइंट्स एंड देयर इज नो पॉइंट which is 18 meter away from the tree and equidistant from x and y. It means that there is no possibilities that if you can take any point which is 18 meter away from the t as well as equidistant from x and y, because these points are collinear points and it is not possible.